students, in today's video lecture we will talk about the anti-ulcer drugs and the specific anti-ulcer drug that we will discuss is the anti-H. pylori drug, means the drug responsible for inhibition the function of H. pylori, that bacteria is responsible for peptic ulcer. And the second we will talk about the drug that is cytoprotective drugs that involves in the protection of mucus layer. So one by one we will discuss cytoprotective layers. First we will discuss, then we will talk about the anti-H. pylori drugs. So in this discussion I would like to mention that all the real drug, as we have talked about the proton pumps inhibitor and so many drugs that were acting by producing the by exposing the reduction in volume of HCl. After that we studied the antacid. Antacid was performing their function by neutralizing the gastric acid. But here we will talk about first cytoprotective drugs, or we can say the drug which maintains the mucosal layer, or we can say which protect the mucosal layer. That's why we can categorize them as a cytoprotective drugs as well. In the cytoprotective drugs, like I will discuss the two drugs that are important and fall under the category of cytoprotective. That number one is sucral fat, and after that we will talk about CBS, that colloidal bismuth substrate. In sucral fat, I will make a clear concept of sucral fat. How does this drugs involves as a cytoprotection, that how does it play a role of cytoprotective in case of mucosa. And we will talk about what are the condition where we will not provide sucral fat, or we will talk about the side effect of sucral fat. So one by one, first we will talk about what is the component of sucral fat. Sucral fat is actually made up of aluminum hydroxide along with sucrose octaphosphate. So this is a complex structure. In that structure, the aluminum hydroxide along with sucrose octaphosphate structurally makes a big compound that name is actually sucral fat. It has aluminum hydroxide and sucrose octaphosphate. How does it perform their action? Once it is uptaken, or it degrades in the acidic medium. Where does the acidic medium is present? In the stomach itself, as there is an acidic medium. Sucral fat once reaches in the stomach, due to the acidic medium, the aluminum hydroxide sucrose octaphosphate get degrades, and aluminum containing plus charge separated from the sucrose octaphosphate that is having negative charge. Now this sucrose octaphosphate that has been degraded under the influence of acidic medium in the stomach, it's combined, or you can say will try to combine with the molecule that have a positive charge, because sucrose octaphosphate has negative charge. So in an acidic medium, right, in an acidic medium, the charge sucrose octaphosphate is separated out from the aluminum, and this has negative charge. This will search all the protein, glycoprotein present in the mucus in the stomach and hold it together. Means this sucrose octaphosphate, as it is negatively charged, it takes all the positively charged proteins molecule in the mucosa, or it also activate also it activates the attract to the glycoprotein. So it forms by combining these all, it forms a gel-like structure that covers the mucosa from the HCl. That's why we are saying this is cytoprotective drugs. Now, as we have discussed what is the mechanism, how does this drug produce a gel-like structure, तो सिंपल से इसमें क्या समझ में आया आपकी, क्या चीजें हैं कि आपने ड्रग ली, एसिडिक मीडियम में डिग्रेड हुई, एसिडिक मीडियम में डिग्रेड होने के बाद वहां पे जो ड्रग का डिग्रेडेशन हुआ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुए। पॉजिटिव एल्युमिनियम के साथ गया, नेगेटिव चार्ज में सुक्रोज ऑक्टाफॉस्फेट अलग होगा। सुक्रोज ऑक्टाफॉस्फेट म्यूकस में जो इंडल्स
प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी और होल्ड करके एक स्ट्रक्चर बना लेगी। वो स्ट्रक्चर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहेंगे कि अब उसने म्यूकस को एक प्रोटेक्शन दिया है, एक कवर करने का HCl से, एक फिजिकल बैरियर का काम करेगा ना। This physical barrier, or we can say the gel-like structure, what does it do? It actually perform the inhibition of function of pepsin over the mucosa. As we know, apart from hydrochloric acid, pepsin is also responsible for making the ulcerative holes. So, what does it? What does the gel which is formed from the sucral fat is playing a role? It is inhibiting the pepsin to degrade the mucosa, or it also inhibit the diffusion of H plus ion. Diffusion of H plus ion. Once the diffusion of H plus ion will reduce, there will be less formation of HCl. Means more and more H plus ion will be more and more H plus ion will be embedded inside the mucous layer. Then there is a parietal cell that is forming HCl by capturing the H plus ion. If diffusion of H plus ion will be less, then there will be less formation of HCl. So by performing these two mechanisms, it is responsible for creating a protective role. That's why we are considering them as a cytoprotective drugs. Next concept, as we are saying it is a cytoprotective drugs, as we are actually inhibiting what? Aggressive factor like pepsin, and we are reducing the formation of HCl, that is also aggressive factor. So once we are inhibiting the aggressive factor, automatically there will be elevation of what? Defensive factor. Defensive factors are that we have discussed in the initial video of the peptic ulcer, like mucus, which is a defensive factor, bicarbonate and prostaglandins. So we can say theoretically the sucral fat perform their action by inhibiting the pepsin function to over the mucosa, or by inhibiting the formation of HCl, or by increasing the level of defensive factor like mucus, bicarbonate and prostaglandins, so that there will be a definite physical barrier, gel-like structure that hold or that keep the safe mucus layer from the HCl. So this is the point. Now I think we have clear up to here. Now as we are taking the aluminum containing compound, that aluminum hydroxide with structurally a single structure है, single compound है, दो compound नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, aluminum hydroxide and sucrose octaphosphate. तो अब सुक्रोज ऑक्टाफॉस्फेट ने तो क्या किया? जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। अब जो रिमेनिंग एल्युमिनियम का पार्ट था, वो एल्युमिनियम का पार्ट जब क्लोराइड से स्टमक के अंदर कंबाइन होगा तो बना लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। वो AlCl3 जब ट्रेवल करके इंटेस्टाइनल या ड्यूडेनम में जाएगा, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में AlCl3 विल कन्वर्ट इनटू एल्युमिनियम फॉस्फेट, और Cl जो यहां से रिमूव होगा दैट विल बी रीअब्सॉर्ब अगेन इन द ब्लड. Now this aluminum phosphate, because this phosphate has higher intensity of negative charge, so that aluminum will replace this chloride from this phosphate group and form the compound that is aluminum phosphate. Now in the intestine, this aluminum phosphate holds more and more phosphate to it, and this will leads to the less अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड. तो यहां से आप कई बार रिलेट कर पाते हो इसके साइड इफेक्ट को सुक्राल फैट के, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा एंटासिड में, वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं. लेकिन सपोज करिए आपका वो कॉन्सेप्ट जैसा भी है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें यहाँ पे, तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई एल्युमिनियम फॉस्फेट किस तरीके से बना है. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि एल्युमिनियम फॉस्फेट अपने आप में एल्युमिनियम जो होता है वो खुद एक कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट होता है. वो किस तरीके से? एल्युमिनियम का कॉन्स्टिपेटिंग साइड इफेक्ट इज ड्यू टू द एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम. एल्युमिनियम मींस Al+3 ion. This Al+3 ion, as it is producing the astringent like effect, and as we know the astringent means the drug
or the compound that inhibit the blood flow to the particular area, then we will say in that particular area वो कंपाउंड एस्ट्रिंजेंट एक्शन दे रहा है। तो एस्ट्रिंजेंट एक्शन का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड के फ्लो को कम करना। क्योंकि हम यहाँ एल्यूमिनियम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं that has been reached in the intestinal lumen, और intestinal lumen में if it is showing or producing the astringent like action, it means in the intestinal lumen there will be less flow of the blood, and less flow of the blood leads to the less peristaltic movement. And if we say less peristaltic movement, then we can definitely say it is constipating condition. That's why we say the side effect is constipation due to the astringent action, and it also relaxes the smooth muscle of the intestine, and smooth muscle of the intestine also leads in the constipation. तो यहां से आप इस चीज के रिलेशन को कर सकते हैं। अब दो पॉइंट्स आपके और क्लियर होने चाहिए। देखिए, शुड नॉट गिवन विद एंटासिड, आपको एंटासिड के साथ इस ड्रग को नहीं देना। उसका रीजन एक है, अगर आप इसको एंटासिड के साथ देंगे, because as we know the favorable condition for the sucrol fat as it degraded in the acidic medium, and if you are advising to give this cytoprotective drug along with antiacid, and the antiacid, as we have already discussed, it is prompt in action, very fast in action. So once antiacid neutralize the HCl, then pH will become high, and that pH will not be favorable for the action of sucrol fat, and it requires acidic medium. एंटाइसिड उसको कैसे कर देगा, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको इस पॉइंट को नोट करके रखना है कि शुड नॉट बी अलोंग विद एंटासिड। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन, चूंकि एज इट इज मेकिंग द जेल लाइक स्ट्रक्चर, सुक्रोल फैट इज मेकिंग द जेल लाइक स्ट्रक्चर by combining with the mucus protein or glycoprotein. So once this gel like structure framed over the epithelial cell, now this will retard the absorption of so many drugs in the epithelial cell of the stomach. Drug like what? Fluoroquinolones, theophylline, tetracycline, dioxin and amitriptyline. These are the few drugs important from the GPAT point of view, that how does the cytoprotective drug retard the absorption of many drugs, because they create a physical barrier, and that physical barrier does not allow drug to reabsorb in the inner part of the epithelium cell of the stomach. That leads to the less absorption of these drugs, and if the absorption will be less, then there will be less effect of these drugs. So ये आपका ये वाला पॉइंट भी आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्या साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स एसिड को न्यूट्रलाइज करके अपना फंक्शन दे रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम बात किया करते थे किसमें, एंटी एसिड में। ये पॉइंट हमारा क्लियर है, नो एसिड न्यूट्रलाइजिंग एक्शन। बट क्या कर रही है ये, चूंकि मैंने बात किया कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू द लेस, once there will be less peristaltic movement, or you can say the slow peristaltic movement leads to the exposure of constipating condition. यहां पे हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम आयन Al+3 is by producing the astringent like action, by decreasing the blood flow, or by relaxing the smooth muscle. In both ways, by relaxing the smooth muscle and by astringent action, it is responsible for increasing the, it is responsible for sorry, it is responsible for what, where did I wrote, it is responsible for what, it is responsible for increasing the gastric emptying time. तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम अगर कम हुआ, स्लो अगर मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन का, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम भी कम होगा। तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम भी इनका साइड इफेक्ट है, तो वो इन ड्रग्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इन ड्रग्स को ज्यादा से ज्यादा स्टमक में ही रहना है, इनका पर्पज वहीं पे फुलफिल हो रहा है। तो एक गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को इंक्रीज करके भी अपना एक्शन, एडिटिव एक्शन देते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। तो आपके ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन, ये हम डिटेलली डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेम कैटेगरी ड्रग, क्योंकि इसमें जीपैड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सारे फंक्शन इसमें सेम है। डिफेंसिव फैक्टर्स को बढ़ाना है, राइट, आपकी पेप्सिन की एक्टिविटी को कम करना है, डिफ्यूजन ऑफ H+ आयन को कम करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम एज एबव अलॉन्ग विद जो ड्रग है उनके फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ड्रग का नाम है CBS, कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट।
ये बिस्मथ कंटेनिंग चीलेट्स है। तो बिस्मथ कंटेनिंग चीलेट्स का पर्पज एडिशनली इसको इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिशनली जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इसको इंपॉर्टेंट ड्रग बनाता है अपार्ट फ्रॉम सुक्रोल फैट। वो क्या है, सॉरी, वो कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट में बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को, यहां पे हम एच पाइलोरी की बात करेंगे, एच पाइलोरी की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उस बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सारे फंक्शन ऑलमोस्ट उसके सेम है, इस डिफेंसिव फैक्टर को बढ़ाना, इस तरीके से करना, लेकिन यहां पे ये एंटी एच पाइलोरी ड्रग भी होती है कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। और इस कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट को हम किस तरीके से एंटी एच पाइलोरी में इन्वॉल्व करेंगे, इसमें रेजिस्टेंट को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इसमें पाया जाता है कि नहीं इसमें, तो हम उन चीजों को रिलेट करेंगे। इसलिए आपका ये जानना स्टूडेंट का बहुत जरूरी है कि कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट एडिशनली एच पाइलोरी को ब्लॉक करता है। इसके हम साइड इफेक्ट की अगर बात करें, यहां पे हम साइड इफेक्ट्स में बात कर रहे थे किसकी, कॉन्स्टिपेशन की, यहां पे हम बात करेंगे साइड इफेक्ट में इंसेफेलोपैथी की। इंसेफेलोपैथी, बिकॉज व्हाट इज इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी इज द डैमेजिंग ऑफ द ब्रेन फंक्शंस बाय, ये एक ब्रॉड टर्म है, इंसेफेलोपैथी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें डैमेजिंग ऑफ द ब्रेन फंक्शन होता है। तो वो बिस्मथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करके देता है क्योंकि बिस्मथ एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है जिसकी एक सर्टेन डोज ही रिक्वायर्ड होती है। अगर उस डोज से वेरी करता है या डोज लेवल ज्यादा होता है तो ब्रेन में जाके कोई भी न्यूरोनल एबनॉर्मलिटी करेगा जिसकी वजह से मे भी चांसेस आपके इंसेफेलोपैथी के भी हो सकते हैं। और सबसे मेन कंडीशन जो जीपैट में भी पूछा जा सकता है वो आपकी ये है कि इंसेफेलोपैथी और ब्लैकनिंग ऑफ टंग एंड फीसेस, फीकल मैटर और टंग को ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट सपोज आप कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड की ब्लैकनिंग ऑफ टंग और फीकल मैटर के ब्लैकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म ये होती है कि जो बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड है, मींस बिस्मथ की हम बात करेंगे तो एज इट कम्स टू द माउथ ड्यू टू द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माउथ, इट बिस्मथ कंपाउंड directly combines with that sulfur and there will be a chemical reaction, that chemical reaction leads to the formation of black coloration of fecal matter and tongue। तो आपकी जो जीपैट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो इसका ब्लैक कलरेशन जो आना है वो आपको डिफाइन करना है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से बिस्मथ कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शन का रिजल्ट है कि ब्लैकनिंग ऑफ इंसेफेल टंग एंड फेसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, this is all about cytoprotective drugs. We have discussed sucrol fat as well as we have discussed colloidal bismuth substrate. Now we will talk about the anti-H pylori drug. anti-H pylori में आपको पढ़ना है तो आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि भाई बैक्टीरिया आया कहाँ से। तो कोई भी एक बैक्टीरिया का सोर्स जैसे लाइक कंटामिनेटेड वाटर हो गया, फूड हो गया, एयर से हो गया, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये आपका एच पाइलोरी आप में बॉडी में एडमिनिस्टर होगा उसमें। लेकिन अगर इसकी हम कैटेगरी की बात करें तो एच पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया। कुछ जो है टेक्निकल पॉइंट्स वो आपको क्लियर होने चाहिए। एच पाइलोरी इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया। अब ये करता क्या है इस बैक्टीरिया की अपनी एक कुछ फेवरेबल इन्वायरमेंट है। वो फेवरेबल इन्वायरमेंट इसके लिए बहुत हद तक एसिडिक मीडियम है लेकिन लेस एसिडिक मीडियम। लेस एसिडिक मीडियम का मतलब बेसिसिटी से नहीं है, यहाँ पे लेस एसिडिक मीडियम का मतलब है कि जहां पे HCl है उससे बीनीथ जो सरफेस होगी नीचे की तरफ, जहां पे एसिडिक मीडियम थोड़ा सा कम होगा वहां पर ये ज्यादा इसके सर्वाइवल के चांसेस होंगे। तो ये करता क्या है, ड्यू टू द फ्लैजिला सॉरी फ्लैजिला की वजह से ये जो म्यूकस लाइनिंग होगी स्टमक के अंदर, उस म्यूकस लाइनिंग को होल करता हुआ, उस म्यूकस लाइनिंग को इन्वेड करता हुआ, फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, म्यूकस लाइनिंग को इन्वेड करता हुआ पहुंचेगा इपिथेलियल सेल में जो कि म्यूकस लाइनिंग के नीचे होगी। और चूंकि इपिथेलियल सेल के नीचे पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पे ये आराम से अपने आप को फिक्स रखेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से सेम इपिथेलियल सेल के नीचे तो होता ही है और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स में भी होता है। इसका एक अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है कि ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड में क्या कर रहा है, उसको हम रिलेट करेंगे किससे, न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस से। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी प्रेजेंस कहां कहां पे है। ड्यू टू द
flagella, it invades the mucus lining and reaches inside the mucus lining in the epithelial cell, where due to the presence of higher pH in comparison to the antrum part we can say due to the HCl presence, वहां पे ये सर्वाइव करेगा और इट ऑल्सो प्रेजेंट्स इन अ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड. सो अब यहां पे क्या कर रहा है, इसकी अपनी एक अंदर क्वालिटी होती है. इस क्वालिटी को, बैक्टीरिया की इस क्वालिटी को बच्चों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे डिपेंडेंट होता है कि हम किस तरीके का, अगर पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी से रिलेटेड है तो किस तरीके से हम उसको डायग्नोज करेंगे कि क्या एक्चुअल में एच पाइलोरी से रिलेटेड है या नहीं. तो उसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको एच पाइलोरी को समझना होगा. देखिए एच पाइलोरी अभी तक यही समझ में आया, ग्राम नेगेटिव बैसिलस से म्यूकस लाइनिंग को इन्वाइट करके कहाँ जा रहा है, इपिथेलियम में, चूंकि वहां पे पीएच ज्यादा है, एचसीएल कम है, तो उस वजह से वहां वो सर्वाइव कर रहा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके लिए, और ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स में भी होता है. इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर. अब इसके अंदर एक हाई यूरिएज एक्टिविटी होती है. वो कैसे, यूरिएज एक एंजाइम है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर रखना है. यूरिएज एक एंजाइम, वो एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो एंजाइम करता क्या है, यूरिया को, दैट हैज कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया. इतना ये नॉर्मल फंक्शन है कि अगर वो बैक्टीरिया है, एज नेचुरली द बैक्टीरिया हैज यूरिएज एक्टिविटी, it means that by using the urease enzyme, this bacteria is capable of converting the urea into ammonia. तो आपने अभी क्या देखा, इसके अंदर हाई यूरिएज एक्टिविटी है, इट मींस ये अमोनिया के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब जब अमोनिया का लेवल इंक्रीज होगा तो ये बहुत ही होशियार बैक्टीरिया है. ये जब अमोनिया का लेवल सराउंडिंग में बढ़ जाएगा, इसके चारों तरफ अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, तो अमोनिया का लेवल क्या करेगा, न्यूट्रल माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा. न्यूट्रल माइक्रो इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय इटसेल्फ H pylori, because the present urease enzyme in the H pylori is responsible for making of ammonia from the urea, and once the ammonia will form, this will create in a surrounding of bacteria a neutral charge, and that neutral microenvironment will be most favorable for this bacteria. तो ये इसकी एक अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है. अब इसकी वजह से करेगा क्या, अब ये करेगा क्या कि प्रमोट करेगा बैक डिफ्यूजन ऑफ H प्लस आयन. H प्लस आयन का जो डिफ्यूजन होगा उसको बैकवर्ड करेगा. मींस अब जो ये एरिया बना सराउंडिंग का, भाई उसको H प्लस आयन पसंद ही नहीं है, उसको हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, वो थोड़ा सा नीचे फेवरेबल उसके एनवायरनमेंट है एपिथेलियम सेल में. तो H प्लस आयन को क्या कर रहा हूं, रिपेल कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोट करेगा बैक डिफ्यूजन ऑफ H प्लस आयन को. इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है. अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस की. तो आपका कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि in an initial condition the H pylori, as we have already talked, this is also present in the mucus secreting gland, MSG. From the mucus secreting gland, once the H pylori creates a hole due to the flagella, there will be the first neutrophil. जो neutrophil उसकी तरफ towards chemotactic movement होगा, और neutrophil उस जो mucus secreting gland है जहां पे H pylori है, अभी हम सिर्फ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की बात कर रहे हैं, उस म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड में जब H पाइलोरी विद द फ्लैजिला उसको होल करेगा, तो वहां पे जो डिग्रेडेशन होगा सेल्स का, तो सेल के डिग्रेडेशन से वजह से न्यूट्रोफिलिक मूवमेंट होगा, और न्यूट्रोफिलिक मूवमेंट क्रिएट करेगा न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस. पहली कंडीशन आपकी बनेगी न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस, जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ये हर पर्सन में होता है, लेकिन उसकी वजह होती है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज की होती है, और ये ज्यादातर क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आएगा इस तरीके से. ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो H पाइलोरी करता ही रहता है इन एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक, तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस. आपको समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज न्यूट्रोफिलिक गैस्ट्राइटिस. तो ये H पाइलोरी से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी लोकेशन ही म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड में होती है.
ये आपका क्लियर है। 90% केसेस ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर और द गैस्ट्रिक अल्सर, अगर पर्सन अगर टेस्ट कराता है एच पाइलोरी का तो 90% केसेस में एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। उस लाइन को यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम पहले बात करेंगे यूरिया ब्रीथ टेस्ट की। यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है? देखिए बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी है। बेसिकली दिस बैक्टीरिया हैज यूरिएज एंजाइम and this urease enzyme has capability to convert urea into ammonia। ये सिंपल है। अमोनिया माइक्रो फेवरेबल माइक्रो न्यूट्रल इन्वायरमेंट बना रहा है, उसके लिए फेवरेबल, ये नॉर्मल बात थी। अब क्या होगा? यूरिया ब्रीथ टेस्ट। सपोज करिए कोई पर्सन आता है, वो ये बोलता है कि मेरे, वो डॉक्टर उसको डायग्नोस करने के लिए उसका टेस्ट लिखता है और उसमें लिखता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ताकि वो चेक कर पाए कि आपका जो अल्सर है वेदर इट इज ड्यू टू एच पाइलोरी और समथिंग एल्स। तो उसमें यूरिया ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है कि आपको कैप्सूल्स होते हैं, वो कैप्सूल्स आपके रेडियो लेबल्ड कैप्सूल्स होते हैं, और रेडियो लेबल्ड कैप्सूल वो कार्बन 13 भी हो सकता है नॉन रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव कार्बन 14 भी हो सकता है। तो वो उन दोनों के केस में कार्बन 14 यूरिया क्योंकि यूरिया along with कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन 14, तो जब ये हम देंगे बाहर से कैप्सूल में, तो जब देंगे तो उसके देने के 30 मिनट्स बाद, उस देने के 30 मिनट्स के बाद उसमें क्या होगा? अब जो एच पाइलोरी अगर अंदर है तो एच पाइलोरी मैंने क्या बोला, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। आपने कैप्सूल के फॉर्म में रेडियो लेवल कार्बन के साथ यूरिया दिया था, तो उस यूरिया का वो कन्वर्ट कर देगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो अब जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अगर बैक्टीरिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो पर्सन इंडिविजुअल ब्रीथ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा? दिस रेडियो लेबल्ड कार्बन। तो अब क्या करेंगे डॉक्टर? उसको 30 मिनट्स के बाद उसको बोलेंगे कि आप इसको एक बैलून में, बैलून को मींस फुलाइए, तो उस बैलून में जो एयर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी फिर स्टडी होगी, और उसमें फिर कार्बन 14 अगर मिलता है, वही कार्बन 14 जो कि बाहर से कैप्सूल के फॉर्म में यूरिया के साथ दिया गया था, क्योंकि यूरिया को कन्वर्ट ये अमोनिया में कर देता है। तो अगर ये कार्बन 14 रेडियो लेबल्ड मिला तो इस मींस ये क्लियर हो गया कि इसने वहां पे एच पाइलोरी क्या है? प्रेजेंट है। तो ये आपका यूरिया ब्रीथ टेस्ट हुआ। अगर सिंपल से यूरिया ब्रीथ टेस्ट को फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। यूरिया ब्रीथ टेस्ट में सिंपल हम क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि स्टमक की लाइनिंग्स में, इपिथेलियम में एच पाइलोरी है या नहीं। उसके लिए हम कैप्सूल दे रहे हैं, जो कि कैप्सूल में यूरिया है, कार्बन रेडियो लेबल्ड कार्बन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में यूरिया को, जो बैक्टीरिया के अंदर यूरिएज एंजाइम है, बैक्टीरिया मींस एच पाइलोरी, वो उसको यूरिएज को अमोनिया में चेंज कर देता है। तो अब क्या होगा? जब हम रेडियो लेबल्ड यूरिया देंगे कार्बन के साथ, तो वो उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा अगर है तो। और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बैलून को फुलाने के लिए कहेंगे और उसकी स्टडी करेंगे उस एयर की, तो उस एयर में अगर रेडियो लेबल्ड कार्बन मिलता है तो हम ये मान के चलेंगे कि टेस्ट जो है वो एच पाइलोरी का क्या है? पॉजिटिव है। तब हम उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी एच पाइलोरी इन्फेक्शन इज mainly performed by two category of drug. One is antibiotic, one is H2 blocker और PPI। H2 blocker या तो PPI लेंगे, in most of the cases PPI लेते हैं। तो देखिए इसको भी हमको समझना पड़ेगा ट्रीटमेंट में। यूरिया ब्रीथ टेस्ट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। PPI H2 ब्लॉकर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक में आप मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन। अब सब के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट, चाहे तो मेट्रोनिडाजोल हो या तो टिनिडाजोल हो या क्लैरिथ्रोमाइसिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो, सब के अंदर पहली बात तो एक कोई भी एंटीबायोटिक सिंगल आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि तुरंत वो बैक्टीरिया उससे रजिस्ट हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जो बच्चों को समझना चाहिए, आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन देते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर एक एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में थेरेपी चलती है। वो थेरेपी क्या है वो तो आपको एक अलग पार्ट है, लेकिन थेरेपी का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है। देखिए ये जो 4 ड्रग होती है, मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, इनके इसके लिए उस बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है। नंबर 1 ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहीं पे एमॉक्सिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंटली नहीं पाया जाता है। एक ये पॉइंट आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। सिंगल एंटीबायोटिक आप बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती, वो नहीं देंगे। तो आप ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, या तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर
या तो H2 ब्लॉकर, दो में से एक वो दे रहे हैं, प्लस इन एंटीबायोटिक्स में दे रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक्स। कितनी एंटीबायोटिक देना है वो बात का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्यों, हम पीपीआई का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल करेगी, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके। देख एक्चुअली होता क्या है कि ऑप्टिमम हमको जब बेनिफिट चाहिए होता है एच पाइलोरी के केस में इन्फेक्शन में, अगर एच पाइलोरी से इन्फेक्शन है और हमको रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम बेनिफिट, तो ऑप्टिमम बेनिफिट हमको तभी मिलेगा जब पीएच 5 से ज्यादा हो, स्टमक का पीएच 5 से ज्यादा हो और अप्रोक्सीमेटली वो 16 से 18 घंटे के लिए ये कंडीशन बनी रहे। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, कंडीशन हमने क्या जिक्र किया, कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि पीएच मोर देन 5 हो, और पीएच मोर देन 5 हो, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि 16 to 18 आवर पर डे उसका पीएच मोर देन 5 बना रहे, और वो काम सिर्फ और सिर्फ कर सकती हैं प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर्स। That's why along with the antibiotic we always utilize proton pump inhibitor. नंबर एक, इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं, नंबर एक। नंबर टू, चूंकि जैसा कि मैंने बताया था इसमें कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट में इसके साथ एक एडिशनली फंक्शन है कि ये ड्रग एच पाइलोरी को इनहिबिट करती है। बिस्मथ जो इसका कंपाउंड है एच पाइलोरी के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उस बैक्टीरिया को किल करता है। तो अब एंटीबायोटिक में तो रेजिस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये ड्रग के अंदर रेजिस्टेंस, उस बैक्टीरिया के अंदर इस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। तो कई बार सीबीएस के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से हम इसको एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सीबीएस का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि बिस्मथ अपने आप के लिए, बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक एलिमेंट है। तो अगर ये टॉक्सिक एलिमेंट है तो हम इसको रूटीन यूज में नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सर्टेन स्पैन के लिए, ड्यूरेशन के लिए हम इसको ट्रीटमेंट में एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अब ये जो फेवरेबल इन्वायरमेंट की मैंने बात की, जो कि एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट में हमको चाहिए, पीएच मोर देन 5 होना चाहिए, लगभग 16 से 18 घंटे के लिए पर डे, तो वो हमको तभी मिलेगा जब हम एक दिन में 2 पीपीआई लेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक दिन में जब 2 दिन पीपीआई लेंगे तभी 16 से 18 घंटे के लिए पीएच मोर देन 5 आपका मेंटेन होगा। तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आप क्या क्या ले रहे हैं, एक तो पीपीआई ले रहे हैं प्लस एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो आपकी जो यूएस एफडीए ने डिफाइन किया, जिस रेजिमेंट को यूएस एफडीए ने डिफाइन किया, उसने कहा कि हम क्या क्या लेंगे हम क्या लेंगे, एमॉक्सिसिलिन लेंगे, हम क्लेरिथ्रोमाइसिन लेंगे, एमॉक्सिसिलिन लेंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन लेंगे, और क्या लेंगे हम, एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड लेंसोप्राजोल। ये इनकी डोज है 30 mg, 500 mg फॉर 2 वीक्स के लिए। इनका ट्रीटमेंट 1 वीक और 2 वीक के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे 2 वीक्स में 96% इरेडिकेशन देखा गया है एच पाइलोरी का। मींस अगर 2 वीक्स तक ये लगातार चलती है तो 96% इंडिविजुअल्स को एच पाइलोरी से रिलीफ मिलता है इस पेप्टिक अल्सर से, एच पाइलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर से। तो यूएसएफडीए ने जो 3 ड्रग रेजिमेंट चलाई या चल रही है, बिल्कुल सक्सेसफुल है, उसमें लेंसोप्राजोल 30 mg, एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg 2 वीक्स के लिए। तो एक ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसमें लेंसोप्राजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, राइट। और 2 हम क्या ले रहे हैं, एमॉक्सिसिलिन की रेजिस्टेंस बहुत कम थी इसलिए लिया, और एक हमने लिया क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद 4 ड्रग रेजिमेंट, इसका क्वाड्रपल ट्रीटमेंट भी होता है, क्वाड्रपल ट्रीटमेंट होता है, और ये 3 ड्रग रेजिमेंट ट्रीटमेंट होता है, और इधर 4 ड्रग रेजिमेंट ट्रीटमेंट होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सीबीएस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बार बार नहीं दे सकते हैं। तो ड्रग रेजिमेंट में सीबीएस भी ऐड कर सकते हैं। तो एक जो रेजिमेंट 4 क्वाड्रपल थेरेपी है, जिसमें 4 ड्रग यूज करते हैं, उसमें सीबीएस, कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और ओमेप्राजोल, इन ड्रग्स का भी कॉम्बिनेशन क्वाड्रपल थेरेपी में 4 ड्रग रेजिमेंट के रूप में एच पाइलोरी को ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका जो भी सारा कॉन्सेप्ट था
म्यूकस प्रोटेक्टिंग एजेंट के रूप में साइटोप्रोटेक्टेड ड्रग्स में, चाहे तो सुक्राल फैट में हो, सीबीएस में हो, या आपका एच पाइलोरी में। जीपैट रिलेटेड सारा कंटेंट, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट that we all have covered in this video lecture. If you have any kind of query, then you can ask me in a comment box. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you very much.